Hello everyone. Today we will start integers and the book which I am using is Maths Word 6 Optima. So what is integers? So the basic definition is the whole number along with the numbers -1, -2, -3 up to minus infinity forms a system of integers. Now यहाँ पर हमने बात क्या करी है whole numbers. Now we know that whole numbers start from 0. So if I draw a line like this, now this is what 0. Now the points which are on the right hand side of 0 are positive points 1, 2, 3, 4, 5 and up to so on up to infinity. And in the left hand side we have negative values, that is -1, -2, -3 and -4, and a combination of all these are known as integers. Now 0, अब 0 के जो right hand side में होंगे यानी the quantities which are on the right hand side, इन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स. दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड द क्वांटिटीज विच आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आर टर्म्ड एज नेगेटिव इंटीजर. दीज आर नेगेटिव इंटीजर. नाउ ज़ीरो बच रहा है. ज़ीरो क्या है आपका? ज़ीरो इज, यू कैन राइट इट हेयर, ज़ीरो is neither negative integer nor positive integer. So these are the basic of integers. Now second is absolute value of integers. Now it is the numerical value of an integer with no regards to its sign. For example, ये एक ऐसी मशीन है, यहाँ पर आप कुछ भी डालेंगे तो क्या निकल के आएगा? पॉजिटिव. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई राइट मॉड 7, तो मॉड क्या है? पॉजिटिव है 7 के साथ, तब इसकी वैल्यू कितनी होगी? +7. इफ़ आई राइट मॉड ऑफ -7 देन ऑल्सो द वैल्यू इज़ +7. यानी ये एक ऐसी मशीन है जहाँ पर मैं कुछ भी डाल रहा हूँ वहाँ से क्या निकल के आता है? पॉजिटिव. इफ़ आई राइट मॉड -13 देन इट विल बी 13. मॉड -19 it will be 19, and the symbol is known as mod, mod. So let us start with the numerical. The numerical says that using number line write the integers which is 3 more than 5. Now we have to make first of all a number line. So we all know that what a number line is. So first of all I draw a line. Now I mark it with 0. This is 0. Now they are asking about 3 more than 5. तो 3 कहाँ पर आएगा आपका? राइट हैंड साइड पे, यानी पॉजिटिव है. 1, 2 इक्वल डिस्टेंसेस, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 in this line. Now what they are asking about? They are asking about 3 more than 5, यानी 3 more than 5. You are here at 5. Now 3 more than का मतलब एक आप यहाँ बढ़े, 1, 2 and 3. So you reached at 8. So what they are asking about? So the answer of first is 8. Now second is 4 more than -3. मैं इसी पे ड्रॉ कर लेता हूँ. अब -3 आपका कहाँ पर लाई करेगा? लेफ्ट हैंड साइड पर. -1, -2, -3, -4, -5 up to -infinity. Now 4 more than -3. Now we are at -3. 4 more than means we have to move rightwards, like 1, 2, 3 and 4. So the answer of second part is 1. कहाँ पर आ गए हम लोग? 1 पर. So this is how to solve the integers problem with the help of number line. So starting with exercise 6.1 question number 1, write the opposite of the following numbers. Now opposite यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? Opposite in terms of sign. अब मुझे दिख रहा है यहाँ पर जो 25 है, it is with plus sign, positive. So the opposite of 25 is minus of 25. Just साइन अपोजिट कर दिए मैंने. यहाँ पर भी सेम -2 है. अब माइनस का अपोजिट क्या होता है? प्लस. सो वी विल राइट +2. थर्ड इज़ 4. 4 का अपोजिट -4 एंड -8 का अपोजिट +8. वेरी सिंपल. सो सेकेंड क्वेश्चन इज राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट इज 40 किलोमीटर बिलो सी लेवल. नाउ बिलो सी लेवल का अपोजिट क्या होगा?
बिलो का अपोजिट होता है अबव, सो आई विल राइट 40 किलोमीटर अबव सी लेवल। दिस इज़ फर्स्ट पार्ट। नाउ अर्निंग रुपीज़ 2700, मतलब 2700 रुपीज़ उसने कमाए हैं। इसका क्या होगा? लूजिंग रुपीज़ 2700, जस्ट अपोजिट ऑफ द इंग्लिश वर्ड। इंक्रीज ऑफ 10, नाउ इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज का अपोजिट होता है डिक्रीज, सो आई विल राइट डिक्रीज ऑफ 10। नाउ मूविंग 7 किलोमीटर टू साउथ। अब ये साउथ की तरफ मूव कर रहा है, कितना? 7 किलोमीटर। नाउ साउथ का अपोजिट क्या होता है? नॉर्थ, तो वी कैन राइट मूविंग 7 किलोमीटर टू north. So this is the second question. On to question number third. Write all integers between -4 and 1. So what you have to do is just draw a line. Here you know this is 0. इसके बाद यहाँ पर क्या आता है? राइट हैंड साइड में 1, इसके लेफ्ट हैंड साइड में -1, ये -2, ये -3 और ये -4। अब आपसे पूछ रहा है कि 1 और -4 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको सारे इंटीजर्स दिख रहे हैं। दिस इज़ -3, -2, -1 एंड 0। तो कितने इंटीजर्स आ गए आपके? 4। सो यू कैन राइट -3, -2, -1 एंड 0। नाउ सेकंड इज बिटवीन -4 एंड 3। नाउ -4 आपका आ गया यहाँ पर, या फिर स्टार्ट करेंगे आप 0 से 0, -1, -2, -3, 1, 2 एंड 3। और यहाँ पे पूछा गया है -4 और 3 के बीच में, तो ये देखिए सारे कितने आ रहे हैं? -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2। ये इंटीजर्स आ गए आपके। अब -5 एंड -1। नो -5 एंड -1 कहाँ लाई करेंगे? आपके 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर, यानी ये कितना हो गया? -1, दिस इज़ -2, -3, -4 एंड -5। तो यहाँ पर देखिए आप -5 और -1 के बीच में कौन कौन सा आ रहा है? -4, -3 एंड -2। तो ये 3 इंटीजर्स आ रहे हैं। रेस्ट क्वेश्चन 3 पार्ट आपके लिए होमवर्क है। Now question number 4 is using number line find the integer which is 4 more than -3. Now 4 more than -3 का मतलब क्या है ये समझते हैं पहले। First of all I draw a number line 0 on the left hand side is this is -1, -2, -3. Now it is saying that 4 more than -3. more than का मतलब होता है हमें राइट हैंड साइड की तरफ मूव करना है। अब देखिए ज़रा 4 more than, this is 1, this is 2, this is 3 and this is 4, so the number is 1. So 4 more than -3, answer will be 1. Next is 4 less than 2. Now what does 4 less than 2 means? This is 0, so this will be 1, this will be 2, this will be -1, this will be -2. Now 4 less than 2, यानी आप कहाँ पर हैं? 2 पर हैं। लेस देन का मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड में मूव करना है, लाइक दिस, ये 2, 3 and 4. So the answer will be -2. So here in this case answer is -2. Rest you will try the remaining part of this question. The next question is which is smaller, -120 or 12? So I will write -120 and 12 here. अब मुझे मालूम है कि 0 के जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन के साथ जो भी है वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव वाले से छोटा होगा। दिस इज़ पॉजिटिव, इट मीन्स इट इज़ ऑन द राइट हैंड साइड, और ये कहाँ होगा? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0। सो वी कैन से दैट -120 इज़ लेस देन 12. दिस इज़ फर्स्ट पार्ट। और सेकेंड इज़ -55 एंड -35। अब देखिए इसको समझने के लिए आप ये समझिए पहले, 55 और 35 में से बड़ा कौन सा है? ये वाला 55 इज़ ग्रेटर देन 35। अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी -55 और यहाँ भी कितना हो गया? -35। जो ये साइन है तो ये क्या हो जाएगा? रिवर्स, यानी यहाँ पे ग्रेटर देन था तो ये क्या हो जाएगा? लेस देन। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ थर्ड इज सेम केस, -134 और -131। अब आपको मालूम है कि 134 जो है 131 से बड़ा है। अब मैंने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करा, सो ये साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स। सो द आंसर इज -134 इज़ लेस देन
minus 131. Now the next part is 33 or 11. This is simple. Fourth, 33 और 11. अब 33 और 11 में से बड़ा कौन सा है? 33. फिफ्थ इज -100 एंड -90. अब 100 बड़ा है 90 से, तो साइन क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई है तो क्या आएगा? लेस देन. सिमिलरली सिक्स पार्ट इज -257 और दूसरा है -389. अब मुझे मालूम है 389 बड़ा है किससे? इससे, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करा तो साइन विल रिवर्स. सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ग्रेटर. आपको बताना है कौन सा नंबर इसमें से बड़ा है. तो यहाँ पर आप फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, -38 एंड -43. वैसे क्या है? 43 इज़ ग्रेटर देन 38, बट माइनस से मल्टीप्लाई है तो क्या होगा? -38 विल बी ग्रेटर देन -43. ठीक है. सेकंड इज 0 एंड 5. अब 0 और 5 में से बड़ा कौन सा होगा? 0 इज़ लेस देन 5, सो 5 इज़ ग्रेटर. हियर इन दिस केस -38 इज़ ग्रेटर. I use these blocks for greater sign. Now -150, so I will write -150 and -165. Symbol is this, so we can say that -150 is greater than -165. Next is 210. अब ये तो देखिए प्लस माइनस का साइन है, 210 प्लस है और ये नेगेटिव है, तो ये प्लस वाला हमेशा ज़्यादा होगा किससे? इससे. तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. फोर्थ. फिफ्थ इज 0 एंड -9. तो अगर मैं लिख रहा हूँ 0 और -9, तो -9 विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0, सो वी कैन क्लियरली से दैट 0 इज़ ग्रेटर देन -9, सो ग्रेटेस्ट नंबर इज़ 0. नाउ 140 एंड 130. ये तो क्लियर दिख रहा है कि 140 इज़ ग्रेटर देन 130, सो द नंबर विच इज़ ग्रेटर इज़ 140. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट सिंबल, ईदर ग्रेटर देन और लेस देन. नाउ -9 एंड -5. सिंबल इज़, अब मैंने बताया था अगर 5 क्या है आपका? छोटा है 9 से, लेकिन सिंबल क्या है? नेगेटिव दोनों तरफ, तो सिंबल विल रिवर्स, यानी -9 इज़ लेस देन -5. नाउ 0 एंड 2. अब 2 कहाँ लाई करता है? 0 के राइट हैंड साइड पे, तो 2 क्या होगा आपका? बड़ा, यानी 0 इज़ लेस देन 2. नेक्स्ट -5 एंड -8. अब -5 क्या होता है? बड़ा होता है -8 से, सो आई विल यूज़ द सिंबल दिस. -5 इज़ ग्रेटर देन -8. now -9 एंड 2 क्या है? पॉजिटिव. ये वाला क्या होगा? बड़ा. तो आई विल यूज़ -9 इज़ लेस देन 2. now -3 ये कहाँ लाई करता है? 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये -3 क्या होगा? छोटा होगा किससे? 0 से. अब +5 और 1. अब +5 लिखा है तो +5 तो ऑब्वियस ही बात है बड़ा होगा 1 से, सो ये इसका आंसर होगा. इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. इंक्रीजिंग का मतलब पहले कम, फिर उसके बाद लास्ट में, एंड में ज़्यादा. तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले आपको 0 दिख रहा है, और 0 के साथ साथ कुछ नेगेटिव इंटीजर्स भी दिख रहे हैं, -2, -10 और -15. तो इन्हें अरेंजिंग ऑर्डर में कैसे लगाएंगे? अब -10 क्या हो गया इनमें सबसे छोटा, तो आई विल राइट -10, और आई कैन राइट -10 इज़ लेस देन. -10 के बाद कौन सा है? -5. फिर कौन सा है? -2. अब कौन सा आ गया? 0. अब 0 के बाद कौन से होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स. तो पॉजिटिव में देखिए, एक तो 1, then 4, then 6, then 15. So 1, then 4, then 6, then 15. So this is the required increasing order. This is how to write the question in increasing order, the integers in increasing order. Remaining is homework for you. Now in this question we have to arrange the following in decreasing order. तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है पहले सबसे बड़ा, उसके बाद फिर छोटा. तो आपने पहले क्या लिखना है? 0 लिख दीजिए. अब 0 से बड़े कौन कौन से नंबर हैं? एक तो 5 है और एक 8. तो यू कैन राइट 0 इज़ लेस देन 5, लेस देन 8. सबसे बड़ा कौन सा नंबर आ गया? 8, फिर 5, फिर 0. अब -1 और -2 में से बड़ा कौन सा होगा? 0 बड़ा है किससे? -1 से, और -1 बड़ा है किससे? -2 से. तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर, रिक्वायर्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर. अब यहाँ पर भी चाहें तो आप वैसे लिख सकते हैं, पहले 0 लिखा. अब 0 से बड़ा कौन कौन सा नंबर दिख रहा है? 4 एंड 7. सो आई कैन राइट 0 इज़ लेस देन 4, लेस देन 7. फर्स्ट नंबर इज़ 7, 7 ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 0. नाउ यहाँ पर क्या आएगा? अब देखिए
-3 है, -4 है और -10। सबसे छोटा कौन सा है? -10। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम -3 greater than -4 greater than -10. So this is the required decreasing order. Now in this question we have to write two possible values of x if x is greater than 4. So we can draw a number line. This is 4. तो x क्या है हमारा? बड़ा है 4 से। 4 से बड़ा कौन सा नंबर आता है? 5 and 6. So the answer of this part is 5 and 6. Two possible values they are asking. Now second is x is less than 1. Now this is 1. अब 1 से कम का मतलब होता है लेस देन का मतलब वी हैव टू मूव टू लेफ्ट हैंड साइड। now 1 से पहले क्या आता है? 0। उससे पहले क्या आता है? -1। नाउ द वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन 1, यानी 1 भी नहीं होगी। 1 से पहले कौन कौन से आ रहे हैं? -1 एंड 0। सो द आंसर इज -1 एंड 0। नाउ नेक्स्ट इज x इज ग्रेटर देन -3। नाउ इफ आई राइट -3 ओवर हेयर, यहाँ पे क्या आएगा? -2, -1 एंड 0। तो x की वैल्यू आपकी क्या है? ग्रेटर देन -3। सो द आंसर इज -2 एंड -1। Now the next is fourth part, that is x less than -5. So just draw a number line. This is -5, -6 and -7. Less than पूछ रहा है तो we have to move left hand side. So the answer is -6 and -7. Fifth is 1 less than x less than 4. यानी जो वैल्यू ऑफ x होगी कहाँ से कहाँ लाई कर रही है? देखिए एक तो ये 1 हो गया, फिर 2, फिर 3 एंड 4। तो द वैल्यू ऑफ इंटीजर्स कौन कौन से आ रहे हैं? एक तो 2 आ रहा है और एक 3। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 एंड 3। लास्ट पार्ट इज सिक्स्थ, -6 लेस देन x लेस देन -3। नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे -6 हो गया और यहाँ पर आ गया आपका -5, -4 एंड -3। सो रिक्वायर्ड इंटीजर्स कौन से हो गए? -5 एंड -4. So we can write clearly from here -5 and -4. This is the required answer. So moving on to the next question, find the value of the following. लेकिन इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने अभी तक इसे शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। नाउ द फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग mod -7 प्लस mod -2। नाउ mod का मतलब मैंने क्या बताया था? मॉड एक ऐसी मशीन है जहाँ पर कुछ भी डालता हूँ वहाँ से क्या निकलता है? पॉजिटिव। सो द आंसर इज +7 एंड प्लस दिस इज 2। -2 का क्या हो जाएगा? +2। 7 + 2 इज 9। नाउ दिस इज 0, 0 -3। सो आई कैन राइट 0 का 0 -3। सो द आंसर इज -3। नाउ मॉड -4 है तो क्या करेगी ये मशीन? इसे पॉजिटिव बना देगी 4। माइनस दिस इज 0, 4 - 0 इज 4। सिमिलरली यहाँ देखिए मॉड -5 है तो आई कैन राइट 5, माइनस साइन यूज़ करा यहाँ पे। अब मॉड -5 फिर से आ गया, 5 - 5 दैट इज़ 0। अब देखिए मॉड 13 है तो 13 लिखा माइनस। अब मॉड -7 क्या हो जाएगा? प्लस। तो 13 - 7 इज़ 6। यहाँ देखिए मॉड ऑफ -9 इज़ 9 प्लस 9 दैट इज़ इक्वल्स टू 18। In this part we have to find the absolute value of each of the following. Absolute means mod. तो mod ऐसी मशीन है जो हर एक को क्या कर देती है? पॉजिटिव। तो ये -11 है, इट विल बिकम +11। 0 है तो ये तो पॉजिटिव है या ना नेगेटिव है? 0 तो 0 ही है। अब +5 है, ये क्या हो जाएगा? 5। -7 है, इट विल बिकम +7। 8 है देन 8 विल बिकम +8। -2 है तो -2 क्या बन जाएगा? +2। 10 है तो ये तो पॉजिटिव है तो 10 ही हो गया। -5 है, ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव दैट इज़ +5। सो स्टार्टिंग विथ फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 इज़ ग्रेटर देन एवरी। अब 0 जो है आपका बड़ा होता है किससे? आपको मालूम है सारे नेगेटिव इंटीजर्स जितने भी हैं उनसे आपका क्या बड़ा होता है? 0। क्लियर? नाउ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज़ 0 का मॉड, यानी मॉड 0 भी कितना आता है? 0 ही आता है। Now there are dash integers between 4 and -2. So draw a number line. This is 0, 1, 2, 3 and 4. This is -1, this is -2. Now 4 और -2 के बीच में काउंट करिए कितने इंटीजर्स हैं।
1 2 3 4 5. So the answer here will be 5. नेक्स्ट इज ऑल नेचुरल नंबर्स आर, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर होते क्या हैं, जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एंड स्टिल इन्फिनिटी. सो दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स. 1 क्या है, पॉजिटिव, so these are positive integer. Now the next part is write true or false. 0 is the smallest integer. अभी कह रहा है 0 क्या है, स्मॉलेस्ट इंटीजर है, जबकि स्मॉलेस्ट इंटीजर होता क्या है, माइनस इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स. नेक्स्ट इज द अपोजिट ऑफ -5 इज़ 5. अपोजिट का मतलब मैंने बताया था साइन चेंज होंगे, तो -5 क्या हो गया, +5. दिस इज ट्रू. नेक्स्ट इज mod -12 इज इक्वल्स टू 12. ये भी क्या होगा, ट्रू. नाउ एवरी नेगेटिव इंटीजर इज लेस देन 1. इज इट ट्रू और फॉल्स. सारे नेगेटिव इंटीजर्स आपके क्या हैं, लेस देन 1. देखिए 1 से छोटे क्या हैं, -1 -2, सारे इससे छोटे हैं, तो ये भी क्या हो गया आपका, ट्रू. नेक्स्ट इज 5 इज एन इंटीजर. 5 एक इंटीजर है, हाँ है, ट्रू. नाउ 0 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर. 0 के बारे में स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था, 0 इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. सो दिस स्टेटमेंट इज़ false. So thank you for watching this video. I will make more videos in future. You should have to comment and just do one thing, share and subscribe to my channel Sarthi Ravi Saxena. Thank you and have a nice day.